I am attaching few chapter short notes in this video, and if you want that I should make a video on how to prepare short notes. Hello friends, this is Soumya Saraswat, second year MBBS student at SGMCH Puri. Today we will be discussing about 5 things which will confirm your seat in a government medical college this year. To be honest, 1000 people will click on the video and watch the video, 500 will leave the video from half, and only about 5 to 10 will implement these things in their video, and those 5 to 10 will be selected and not the 1000 who just click on this video. So, and if you are serious about your NEET, then I would request you to sit with a pen and paper, just note down the point I am saying, only 5 points, and implement this in your life. If this video provides any value to your life, then don't forget to hit the like button. अगर आपको कोई भी दिक्कत है या पर्सनल प्रॉब्लम है जो इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं. आप एक मेडिको से 1-to-1 इंटरेक्शन आप कर सकते हैं एंड डिस्कस ऑल योर प्रॉब्लम्स. एंड ऐसे कंटेंट के लिए नीट तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स देख सकता हूँ, ऐसे ही मोटिवेट कर सकता हूँ, ताकि आपका जो रेंज बना रह गया है 500 to 600, उसको आप ब्रेक करके 620 से 630 प्लस जरूर ही स्कोर कर सकते. सो विद दिस लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट थिंग इज टाइम टेबल. देखिए, आपको एक टाइम टेबल बनाना है. द बेस्ट टाइम टू मेक द टाइम टेबल इज बिफोर स्लीपिंग. फॉर द नेक्स्ट डे यू कैन मेक योर टाइम टेबल. देखिए, आपको टाइम टेबल बनाना है. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले ही दिन टाइम टेबल बनाएंगे और पूरा ही फॉलो कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला. आप मान लीजिए आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मुझे इतना आज बायोलॉजी कंप्लीट करना है, फिजिक्स इतना कंप्लीट करना है और इतना क्वेश्चंस करना है. सो ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लीजिए फिजिक्स आपका उस दिन कंप्लीट नहीं हो. मे यू फॉलो योर टाइम टेबल, मे यू डोंट, बट टुडेज रिग्रेट विल डेफिनेटली गिव यू ए किक स्टार्ट फॉर टुमारो, एंड eventually you are going to reach your peak productivity. You will be definitely optimizing your performance. Then we will go for the second point, that is discipline. इतना आपको पढ़ना है, सारे डिस्ट्रैक्शन से आप दूर हो, आप काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो आपको कभी कभी डिमोटिवेट फील हो सकता है. काफ़ी बार ऐसा लग सकता है कि आपको पढ़ने का थोड़ा भी मन नहीं है, लेकिन सो देयर विल बी ऑलवेज वन थिंग दैट विल पुश यू टुवर्ड्स योर गोल, एंड दैट इज़ डिसिप्लिन. आपको एक डिसिप्लिन बनाना है कि मुझे रोज़ ये काम इसी टाइम से करना है. एंड डिसिप्लिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्लीप. यू फिक्स ए स्लीप टाइम, देन अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ योर प्रॉब्लम आर going to be solved in just few days. So I would request you to sleep in a particular time and wake up in a particular time, so that you will get disciplined in your daily task, and you won't face much of the difficulties that you are facing now. So yeah, be disciplined in your task. If you want like I have to play 1 hour for my physical health or do yoga, you have to fix a time, not that ki today I am doing yoga at 6 a.m. then tomorrow I am doing it at 4 p.m. I am very busy and I don't get time, so I have to haphazardly balance. This is just an excuse, and just don't fall into this trap. Sleep at a particular time, wake up at a particular time, keep your daily fixed hour for studies, and you can vary your subjects according to your timetable. So discipline and timetable differs. Timetable is what you will study in which time, like 6 a.m. to 7 a.m. I am going to study biology, then 7 a.m. to 8 a.m. I am going to practice the question. That is, and discipline is that I have to sit from 6 a.m. till 12 a.m. Then I have to take a long break of 30 minutes. Then I have to return back after 30 minutes. And that 30 minutes should not extend to 31 minutes. That is the discipline you have to maintain. And इतना ही कर लो, बस 4 ही महीने है, इतना एफर्ट्स आपका जरूरी बनता है. देन कमिंग टू द थर्ड थिंग इज द मॉक टेस्ट एंड रिव्यू. देखिए, मैंने जितना भी नीट अटेंड 2 बार मैं डिस्क्वालीफाई हुआ. रीजन था कि मेरा केमिस्ट्री वीक था, एंड सेकंड रीजन इज मॉक टेस्ट को मैंने ठीक से एनालाइज नहीं किया था. मॉक टेस्ट में रेगुलरली दे रहा था, डिसिप्लिन से दे रहा था, लेकिन कभी घर आके मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज नहीं किया कि मेरा कहाँ गलतियाँ हो रहा है, मुझे किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए. लेकिन नीट 2022 पे मैंने मॉक टेस्ट में ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था. जो गलतियाँ हो रहा था उस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ा, ना कि जो चैप्टर से ज़्यादा मार्क आ रहा था. हापाजर्डली A to Z रिविजन नहीं किया. जितना मुझे चाहिए था उन टॉपिक पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, एंड दैट्स व्हाई आई कुड सिक्योर ए डिसेंट रैंक इन नीट 2022. सो इस पॉइंट को तो आपको ज़रूर ही करना है, नहीं तो सिलेक्शन मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है.
मॉक टेस्ट रेगुलरली दीजिए, कोई भी एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। देन जितना भी टेस्ट होता है एक भी स्किप मत कीजिए, टेस्ट देकर आइए। जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट जितना भी मार्क आए, आप अभी घबराना नहीं है। उस टेस्ट को एनालाइज कीजिए कि किस चैप्टर से मेरा ज़्यादा गलतियाँ हो रहा है, उस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस चैप्टर को अच्छे से करिए। धीरे धीरे आप बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करने लगेंगे। मैं आपको सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे लगता था कि ये 4 क्वेश्चन गलत हो गए, ये क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या हुआ कि हम 20 टेस्ट दे रहे हैं टोटल अप्रोक्सीमेटली। देन अगर आप 4 से 5 मान लीजिए 5 आपका गलती हुआ, 5 × 20 100 क्वेश्चन हो गया। 100 में से ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-3 क्वेश्चन आ गए थे नीट में डायरेक्टली, जो कि बहुत टाइम ले सकता था सॉल्व करने के लिए अगर मैं उसे फर्स्ट टाइम देखता। एंड वो कोई इस मॉड्यूल में भी नहीं था, डायरेक्ट मॉक टेस्ट से ही आया था। सो 12 मार्क ऐसे ही मैंने सिक्योर कर लिया था 2-3 मिनट। जो आप 100 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, वो कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। अगर आप एक मिस्टेक कॉपी बनाते हैं, मिस्टेक कॉपी में आपका लिखते हैं कि ये वीक रहा, ये मैंने गलतियाँ की। सो आप अगर अपने मिस्टेक को ही सुधारते जाएंगे, आप बहुत ही स्ट्रांग होते जाएंगे अपने वीक टॉपिक में। और स्ट्रांग तो स्ट्रांग ही है। आप जो 550 से 600 में फंसे हुए हैं, आप आराम से 600 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 600 टारगेट मत रखिए, 620-30 रखिए, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो आप 605 या 10 पे लैंड करेंगे और आपका सीट पक्का हो जाएगा। 600 टारगेट रखेंगे तो 580 पे लैंड करेंगे एंड consequences are going to be very bad. Now going for the 4th topic, that is short notes. You have to make short notes for each and every chapter of physics and chemistry, especially biology. You have to read from NCERT. It depends on you whether you are making biology short notes or not. But chemistry, specifically organic, and physics, totally all formulas, you should be making a short note so that you can revise the chapter multiple times, in which a student who is not doing smart work will be taking 2-3 days to revise physics only, and you can revise physics in 1 day or just. I am attaching few chapter short notes in this video, and if you want that I should make a video on how to prepare short notes with optimum productivity, which can just make you revise every concept with a short span, you can comment down so that I will be helping you out in that. The 5th and the last thing is आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बायोलॉजी में एक चैप्टर में से लगभग 150 to 200, केमिस्ट्री में 100 to 200 एंड फिजिक्स में 150 to 250। देखिए काफ़ी बार ये होता है कि हम चैप्टर समझते जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझते जाते हैं और हमें खुशी मिलती है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब हम नीट देने बैठते हैं, अगर हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो लास्ट में ये होता है कि हमें लगता है हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, और लास्ट में मुंह लटका कर हम एग्जाम सेंटर के बाहर आते हैं। So NEET, you are going to solve question, not how much concepts you have learned or anything like that. Concepts is necessary, but solving questions is a part of it and it's your duty if you are preparing for NEET. So एक दिन में आपको एक चैप्टर के तो जिससे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब बायोलॉजी के चाहे 150 से 200 कर लो या फिजिक्स के 150 से 250 क्वेश्चन कर लो, लेकिन एक चैप्टर एक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं। एंड आई विल सजेस्ट दैट एक दिन में आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़िए, इधर बायोलॉजी फिजिक्स और बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री। 3 सब्जेक्ट एक दिन में ना पढ़िए, एक दिन में 2 सब्जेक्ट लीजिए और नेक्स्ट डे उसको चेंज कर दीजिए। एंड ये मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है, 1-to-1 इंटरेक्शन मुझसे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और ये 5 चीज़ें आपको करना है जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाए। अगर आपका कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी कोर्स ख़त्म कीजिए। ये 5 चीज़ों को एक डायरी पे नोट कीजिए या एक शॉर्ट नोट पे आप नोट कीजिए एंड उसको लेकर चिपका दीजिए जहाँ आप बैठते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पे आपको बार बार आपका नज़रें जाएंगी और आपको ये करना है। ये हैबिट, इन 5 चीज़ों का हैबिट आपने बना लिया तो आपका सिलेक्शन 100% है, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आई थिंक दैट यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर कोर्स, जस्ट फोकस इन दिस 5 थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू गेट ए श्योर शॉर्ट सिलेक्शन इन NEET। एंड आप मुझे DM कीजिए एंड आई विल ट्राई टू गिव 100% रिप्लाई टू एवरी प्रॉब्लम। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ऑल प्रॉब्लम्स
for at least 1-2 months till I get a new exam, and all the best for your NEET. जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू सौम्या सरस्वती MBBS फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस. थैंक यू.